Three students were asked about the probability of passing in their mathematics paper. Let's understand their responses. The first student was very sad and said that the probability of his passing was low. The second one was really happy because he felt that the probability of his passing is very high. The third kid was a little confused. He says that his probability of passing is somewhere in between. So the probability just tells you how likely it is for an event to occur. Here, the event is passing the exam. In the first case, the likelihood of passing is not very likely. In the second case, the likelihood of passing is very likely. And here, the likelihood of passing is somewhere in between. But none of them are sure. They are just telling us what they feel and what is the most likely outcome. That's probability. Right. So you already know probability means chances of occurrence. जो भी चीज़ की हम probability निकाल रहे हैं हम chances निकाल रहे हैं कि क्या chance होंगे उस चीज़ के होने के. So it is not exact, it is just a estimation to something. So my question to you is, we have already done probability in class 9th, then we did it again in class 10th, and now again we are going to study probability. So is there any difference that you did it in class 9th and in 10th? Was there any difference in class 9th probability and class 10th probability? Do you think there was some difference? Anybody? Okay, so there was some difference and we're going to discuss it briefly, because though they say that you don't have to do axiomatic approach, but I'll be discussing it here because if you don't know axiomatic approach, क्लास 12th में जाकर थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी. सो वी आर गोइंग टू डू ऑल द थ्री अप्रोचेस. ओनली आई हैव टू गिव यू एन आइडिया, तो हम लोग करेंगे. ठीक है. So probability, basically in class 9th you did statistical approach. Statistical approach में क्या होता है कि आपके पास आप एक experiment actually perform करते हो and then you observe कि जिसकी भी आपको outcome देखने हैं, जो भी जिसकी भी probability निकालनी है, आप उसकी frequency देखोगे कि वो कितनी बार आ रहा है. Actual observation है आपकी अपॉन कि टोटल आपके पास कितने ट्रायल्स, जितने भी आपने ट्रायल्स किए हैं वो कितने ट्रायल्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉइन को टॉस किया 10 बार, अब आपको निकालना है कि हेड कितनी बार आया. तो आप 10 बार जब टॉस कर रहे हो तो आप एक्चुअली देखोगे कि हेड कितनी बार आ रहा है, और क्योंकि आपने 10 टाइम्स उसको टॉस किया तो आप divided by 10 करोगे. So that was statistical approach in which you were actually performing the experiment and then you were taking out the data from it and then you were finding out the probability of anything. So this is called the statistical approach, right? Then in class 10th what you did was classical approach to probability. Now what is classical approach to probability? We do not actually perform the experiment, but what we take one assumption there, that जो भी outcomes आएंगे they are all equally likely outcome. Equally likely means the chances of occurrence of both. जो भी आपके पास आउटकम आ रहे हैं, अगर 2 आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं, सबके चांसेस ऑफ अकरेंस सेम होने वाले हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आने के चांसेस भी हाफ है, टेल आने के चांसेस भी हाफ है. दैट इज व्हाट वी टेक, राइट. देन अगर आप एक डाई थ्रो करते हो तो आप क्या लेते थे कि 1 के चांसेस ऑफ अकरेंस है 1/6, 2 का है 1/6, 3 का है 1/6. So basically we were taking all the outcomes were equally likely. सबके आने के chances of occurrence same है. So that was your classical approach. Now you can see here that statistical approach जब भी हम पढ़ेंगे, so we need to actually perform the experiment, right? Without actual experimentation आपके पास data नहीं होगा और आप इस approach से probability find out नहीं कर पाओगे. So this is the biggest limitation of this
अप्रोच, दैट इज कि अगर मेरे को एक एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स कंडक्ट करना है तो वो बहुत टीडियस जॉब होगा, राइट? उसके आउटकम्स अगर हम सब लिखना चाहें तो वो बहुत लेंदी एक मेथड हो जाएगा टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एंड क्लासिकल अप्रोच की क्या एक लिमिटेशन है, कोई बता सकता है? अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज क्लासिकल अप्रोच, सो व्हाट डू यू थिंक द limitation of classical approach is? Anybody? So the biggest limitation of classical approach is कि यहाँ पर हम ये assume करके चलते हैं that all the events are equally likely या all the outcomes are equally likely, जो कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अगर मैं आपको कभी बोल दूँ कि head के आने के chances twice है tail के आने से, so now the chances of occurrence of head is twice that of tail, तो अब तो इनके chances of occurrence same नहीं है। तो हम ये कैसे लेकर चल सकते हैं कि हमेशा हमेशा all the outcomes will be equally likely? So this is the limitation of your classical approach, and to overcome both these limitations what we study is the third approach to probability that we study in class 11th, that is your, let me write down, that is your axiomatic approach to probability. Okay, now to understand axiomatic approach we need to understand few terms before that. So we are going to study today terms related to axiomatic approach so that in next class we can understand what axiomatic approach actually means. So one term related to is random experiment. Then the next term related to this is event, and the next term is our sample space. So we are going to focus on these three terms for today. Fine, to understand axiomatic approach. I hope this is clear to everyone, right? Yes, ma'am. Okay, so let's study what is random experiment. जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक टर्म पता करना है, that is random experiment. So whenever you experiment या जब भी आप कोई भी एक experiment करते हो, that is of two types. या तो वो हो सकता है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, या फिर हमारे पास वो हो सकता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, सो फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस. रैंडम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे उसके आउटकम्स हमेशा फिक्स्ड होंगे, नो मैटर आप कितने भी बार उसको कंडक्ट कर लो उस एक्सपेरिमेंट को. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हो और आप उसमें ले रहे हो द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन, सो यू नो द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन इज ऑलवेज द सम ऑफ एंगल्स in a triangle in a plane. अगर आप ले रहे हो तो sum of the angles is always going to be 180 degree. This is never going to change, right? कितने भी आप triangle ले लो, कैसा भी आप triangle ले लो, जो sum of the angles है of the triangle will always be 180 degree. So such experiment is called deterministic experiment, where your outcome is always going to be fixed. Whereas a random experiment, जो कि हम हमेशा यहाँ पर अब डील करेंगे, a random experiment is that in which you have more than one possible outcome. अब जब एक से ज़्यादा हमारे पास possible outcome है, so obviously you cannot predict the outcome in advance. So the second point here is you cannot, or it is not possible to predict the outcome in advance. So this is the basic difference between deterministic experiment and the random experiment. For example, इसके लिए अगर मैं example बोलूँ, so let's say we toss a coin. So when you toss a coin, either you can get a head or you can get a tail. So here we have more than one outcome. Head और tail आ रहा है, दो outcomes आ रहे हैं, और
हमें पता भी नहीं है कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, कोई भी आ सकता है. सो सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. राइट? क्लियर? So this was just for your understanding. Experiments are of two types, deterministic and random experiment. Now let's understand other terms related to probability axiomatic approach. That is, what is a sample space that we have to focus on for today's class? Sample space, event and sample point. So I'm going to show you a video for that. Let's understand through it and then I'll explain it to you again. So let's see. Let's understand a few jargons used in Can probability. hear? Can you hear the video? Yes, ma'am. Okay. And we take the most common example of the roll of a dice. These are the 6 possible outcomes or possibilities. You can either roll a 1 or a 2 or a 3 and so on up to 6. Remember, you're rolling just one dice, so you will get any one of these 6 options. All these outcomes together form something called the sample space. And each outcome is called a sample point. 1 is the sample point, 2 is the sample point, 5 is the sample point, and so on. Now assume So इधर क्या बोला है? आपने एक experiment conduct किया. That is, you are throwing a die. So whenever you throw a die, you get 6 outcomes. आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6. So these are your all possible outcomes. इधर हमने सारे outcomes लिख दिए हैं. So that is basically is your sample space. A sample space is a set of all possible outcome. Even if you're missing one outcome, that will not be called as your sample space. अगर आप एक die throw करते हो तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो मैंने 6 के 6 यहाँ पर लिस्ट कर दिए कि क्या पॉसिबिलिटीज है. सो व्हाट इज अ सैम्पल स्पेस? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. नाउ अ टर्म इज आल्सो रिलेटेड टू सैम्पल स्पेस इज सैम्पल पॉइंट. सैम्पल पॉइंट क्या होता है? एनी वन ऑफ द आउट, कोई भी एक आउटकम इस सैम्पल स्पेस में से. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जस्ट कंसिडरिंग वन, जब आपने एक डाई थ्रो किया, you're just considering one has come up. So this is a sample point. Basically, the elements of the sample space are called the sample point. कोई भी एक उठाओगे, that is called a sample point. Right? Let's see. Now assume you're asked the probability of getting a number less than 3 at one throw of a dice. Look at the outcomes and decide which ones will result in a number less than 3. These two outcomes are the only possibilities. It can only be these two outcomes, 1 or 2. That becomes our event. These are the only 3 things you will use very often in probability. Let's review what we just learned. We saw what a sample space is. It can be defined as all possible outcomes. Then we saw what a sample point means. A sample point is one possible outcome. Any one outcome from all possible outcomes. And then we came to an event. And an event can be defined as one or more of the possible outcomes. So when they say all outcomes or one or more possible outcome, basically they are talking about the set. So when you say what is a sample space, it is a set of all possible outcome. एक set होता है जिसमें आप सारे outcomes लिखोगे. ठीक है? This is important. अगर आपने set में नहीं लिखा तो वो sample space हम नहीं consider करेंगे. तो वो set form में लिखना ज़रूरी है. Then event क्या है? It is one or more possible outcome. हो सकता है एक हो या एक से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं वहाँ पर. So that is basically called an event. So event is basically a subset of the sample space. क्या होता है? सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का. एज यू नो, सबसेट में हमारे पास या तो एक हो सकता है हमारे पूरे यूनिवर्सल सेट में से, या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. मैक्सिमम जितने हमारे पास यूनिवर्सल सेट में होते हैं एलिमेंट्स, उतने एलिमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं सबसेट में. सो सबसेट सैम्पल स्पेस का हम क्या बोलते हैं? इज एन इवेंट. ऑल्सो
इट इज जस्ट लाइक योर सेट थ्योरी. जैसे हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था ना, सारे ऑपरेशंस एग्जैक्टली वैसे ही आएंगे. अगर आपको सेट्स आता है तो आप प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ. जैसे हमारे पास सेट्स में यूनिवर्सल सेट होता था, in the same way here the sample space is treated as your universal set. That means जब हम बोल रहे हैं it is the set of all possible outcome, तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके सारे आउटकम्स तो उधर आ गए. तो अब जब सारे आउटकम्स इसी में हैं तो यूनिवर्सल सेट में ही तो सब कुछ होता है. सो दैट इज व्हाई वी से द सैम्पल स्पेस इज ट्रीटेड एज द यूनिवर्सल सेट हियर, राइट. एंड इवेंट क्या है? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस. ये कोई भी एक सबसेट हो सकता है सैम्पल स्पेस का. सो लेट्स स्टार्ट विद सैम्पल स्पेस. इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं बाय टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स. अगर कभी भी एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है एंड यू आर आस्क्ड टू राइट द सैम्पल स्पेस, then what you're going to write is you're going to find out what are the possible outcomes for that experiment. All possible outcome, कोई भी छोड़ना नहीं है. जो जो possibilities बन सकती है, you will find out all the possibilities and you will write it in the set form. So that will be your sample space. So that is what we are going to study and practice today. That is how to write the sample space for any experiment. So let's start. We're going to see few examples and questions. Okay, so let me do the first one for you. It is very easy. From the next one you can do. Two coins are tossed. Find a sample space. So इधर एक्सपेरिमेंट क्या किया है हमने कि हम दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं. अब देखो, जब एक दो कॉइन्स को आप टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं. हो सकता है पहले कॉइन पर हेड आ गया और दूसरे कॉइन पर टेल आ गया. बट दिस इज नॉट फिक्स्ड, राइट? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहले कॉइन पर हेड आया है और दूसरे कॉइन पर भी हेड आया है. सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी. देन दिस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर टेल आया है, दूसरे पर हेड आया है. या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर ही टेल आया है, right? So these are the only possibilities that I can have whenever I'm going to toss two coins at once. तो जब आपने दो कॉइन को टॉस किया तो यही आपके पास पॉसिबिलिटीज है. और कुछ हो सकता है. वी डू नॉट कंसिडर कि कॉइन खड़ा हो गया है, कॉइन कोई हेड या टेल आया ही नहीं, ऐसा कुछ हम केस नहीं लेते हैं. मतलब हेड या टेल जरूर आएगा. सो दीज आर the only possibilities of this experiment. So this is basically your sample space. You will denote it by capital S and write it in the set form. That is basically your sample space for this experiment. So in all the questions we are going to write the sample space for the experiment. तो आप क्या करोगे? सारी possibilities निकालो, उसको set form में लिख दो. Right? Is this example clear to everyone? ठीक है, करें नेक्स्ट. नाउ यू कैन ट्राई दिस. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. फाइंड द सैंपल स्पेस. तो आप इसका सैंपल स्पेस लिखना चाहते हो. एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हो तो इसका सैंपल स्पेस लिखो. सो फर्स्ट यू कैन ट्राई एंड फिर उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्टकट भी बता दूंगी. कितने आउटकम्स आ रहे हैं ये मुझे बता देना. Ma'am, so sample space is all the outcomes. Set of all the outcomes, yes. Set होता है और उसमें सारे आउटकम्स लिखने होते हैं. मैम 8 आउटकम्स आ रहे हैं. 8 आउटकम्स आ रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग हियर इज, जब भी आपको देखना है ना कि कितने आउटकम्स आ रहे हैं, तो आपके पास जब भी एक एक्सपेरिमेंट को आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो सेम ही एक्सपेरिमेंट 3 बार कर रही हूँ मैं. सो बेसिकली इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ फाइंड आउट करने के लिए. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर निकालने हैं तो वो कैसे निकाल सकते हो. So the total number of outcome is given by this formula. कि अगर आप इसको सिर्फ एक बार करते हो, एक कॉइन को एक बार टॉस करते हो, so you know there are 2 outcomes.
हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब कितनी बार रिपीट किया उसकी पावर में लिख दो इसको। सो 2 raised to power 3, दैट मीन्स यू मस्ट हैव 8 पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब निकालना कैसे है देखो, अब आप ऐसे करते कि हेड 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 आया है, हेड हेड टेल आया है, हेड टेल हेड आया है, जरूर कर सकते हैं, बट क्या होता है इसमें थोड़ा सा कभी कभी एक आध एलिमेंट, एक आध सैम्पल पॉइंट आपका मिस हो जाता है। तो इसको बेस्ट वे है टू फाइंड आउट ऑल द आउटकम्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज कि जैसे आपने ये निकाला कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, इसको पहले 2 से डिवाइड कर दो। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल डिवाइड 8 by 2, so you are getting 4. तो आप क्या करोगे, you're going to write head 4 times and you will write tail 4 times. ठीक है, अब 4 आया था, अब 4 को डिवाइड अगेन कर दो 2 से, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना। तो अब आपके पास कितना आया, यहाँ पर आ गया 2। तो अब आप क्या करोगे, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल, एंड 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल। ये नेक्स्ट हो गया। अब अगेन 2 आया है, 2 से डिवाइड कर दो 1, हमें 1 तक जाना होता है जब तक सब कुछ एग्जॉस्ट नहीं हो जाए। तो अब क्या करेंगे, एक बार हेड, एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। सो नाउ व्हाट यू सी इज, अगर इसी को आप सेट फॉर्म में लिख दोगे, दैट इज हेड हेड हेड, तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया था, तो हेड 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 आ सकता है तीनों पर, तीनों बार, या फिर हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, एंड टेल 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 आ सकता है। सो दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट ऑल द आउटकम फॉर टॉसिंग अ कॉइन मोर देन ट्वाइस, क्योंकि 2 बार तक का हमें पता है 4 आउटकम्स आते हैं और वो बहुत इजीली लिखे जा सकते हैं। बट इफ यू टॉसिंग द कॉइन 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, देन थोड़ा सा एक आध एलिमेंट कहीं मिस ना हो जाए। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट, राइट। चलो मैं यहाँ पर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन इधर ही पूछ लेती हूँ। टेल मी, इफ you have a coin and you're tossing it 4 times, then what will be the sample space? A coin is tossed 4 times. What will be the sample space? बताओ। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है, अभी 3 बार किया था पीछे, अब यहाँ पर 4 बार किया है। So what is going to be the sample space? So first you can tell me the total number of outcomes for this. Who will tell me the total number of outcomes? 16. 16, राइट, क्योंकि एक कॉइन को 4 बार टॉस करे तो 4 बार वही सेम चीज रिपीट हो रही है। सो आपने किया 2 raised to power 4 which is 16. Now you find out all the outcomes. So how will you do it? Anybody? First step is, Ma'am, we'll divide 16 by 2, so ma'am, we'll get 8. Ma'am, then we'll divide 8 by 2, so ma'am, then we'll write 8 times h and then 8 times t. right. So when you divide 16 by 2, you will get 8. So you will write head 8 times, and tail 8 times. Right. अब देखो 4 टाइम्स में जरूर आपका कुछ ना कुछ मिस होने के चांसेस हो सकते थे जब आप डायरेक्टली लिखते, बट इस केस में आप नहीं मिस करोगे। नाउ यू डिवाइड अगेन 8 by 2, you get 4. So what you're going to do is you're going to write head 4 times, then tail 4 times, again head 4 times, and tail 4 times. Then next is 4 4 divided को by हम 2, so ma'am, we'll get 2. 2. So then you will write head head tail tail, head head tail tail, head head tail tail, head head tail tail,
and last 2 divided by 2, that is 1. So now you're going to write head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. So these are basically your all outcomes. इसी को set form में लिख देंगे. So this is our sample space. This is the set of all possible outcomes. Right? So this is how you can do a coin question whenever you have the experiment repeated more than twice. ठीक है? I hope this is clear to everyone. तो आप इसी तरीके से निकाल लिया करो. Okay, let's Yes, do ma'am. another question. Now you can try this one. A coin is tossed and a die is thrown. You have to write the sample space. एक coin toss कर रहे हो and उसके साथ एक die भी throw कर रहे हो. Now you write down the sample space. What do you think? What will be the sample space? Yes, Sukmani. Ma'am, I think there will be 12 outcomes in this one. Okay. Like head, comma 1, head 2, head 3, head 4, and so on till head 6. Then tail 1, tail 2, tail 3, up till tail 6. Very good. So what we are doing here is we are first tossing a coin, and with that, see, you will have to consider everything that is given in the experiment. ऐसा भी होता है कभी कभी कि coin toss किया फिर उसके बाद उसके आगे कुछ किया, तो सारा हमें कंसिडर करके चलना होता है जब तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ. अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में ये दोनों चीजें हो रही हैं, दैट यू आर टॉसिंग अ कॉइन ऑल्सो एंड यू आर थ्रोइंग अ डाई ऑल्सो. तो अब क्या हो सकता है, क्योंकि जब कॉइन टॉस करेंगे सो यू कैन हैव हेड और टेल, कुछ भी आ सकता है, और बोल रही हूँ हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. एंड व्हेन यू थ्रो अ डाई यू कैन गेट दीज पॉसिबिलिटीज. सो जब सबको क्लब करके लिखेंगे देन ओनली वी कैन हैव द टोटल आउटकम. तो अगर इसका सैम्पल स्पेस लिखना है, सो जब कॉइन टॉस किया था उस पर हेड आ सकता था एंड डाई पर 1 आ सकता है, बट हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3, 4, 5, 6, हेड के साथ ये सारी पॉसिबिलिटीज थी, हमने लिख दी. बट ऐसा भी हो सकता था कि कॉइन के ऊपर हेड नहीं आया है, टेल आया है. सो नाउ ऑल दीज थिंग्स, ये जो भी हमने लिखे हैं पॉसिबिलिटीज, ये टेल के साथ भी हो सकती थी. तो हम लिख सकते हैं टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6. So basically this is the set of all possible outcomes. इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज कॉइन की हमने दोनों पॉसिबिलिटीज ले ली, डाई की दोनों पॉसिबिलिटीज ले ली, और क्योंकि ये दोनों चीजें साथ में हो रही थी हमने दोनों पॉसिबिलिटीज को साथ में कंसिडर करके लिख लिया. So this will be the sample space for your experiment. All of you are getting? Right. Shall try this one. In each of the following experiments, specify an appropriate sample space. A boy has a 1 rupee coin, a 2 rupee coin, and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. You have to write the sample space for this experiment. So एक लड़का है, उसके पॉकेट में 1 रुपी कॉइन है, एक 2 रुपी कॉइन है और एक 5 रुपी कॉइन है, एक एक ही है. और वो क्या कर रहा है, 2 कॉइन्स निकाल रहा है एक साथ पॉकेट, ओके, वन आफ्टर द अदर. तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यू विल हैव टू राइट द सैम्पल स्पेस. सो फर्स्ट थिंक, राइट, एंड देन यू कैन रेज योर हैंड. Yes, Maitri. Ma'am, we can take like A denotes 1 rupee coin, B denotes 2 rupee coin, and then ma'am C denotes 5 rupee coin. So ma'am, he takes out 2 coins. So ma'am, we can write the outcomes. So ma'am, the first outcome can be A, B, B, C, C. Then ma'am, for coin 2 it can be
A, C, no, sorry, ma'am. B, C, A, then C, A, and then ma'am B. So ma'am, all possible outcomes are S equals to then ma'am that. Okay. Then, Okay. So जो भी आपने आगे बोला, I have not written that. अभी पहले यही discuss कर लेते हैं. Okay. Do you people think this is correct? Yes. Anybody? So Maitri is denoting rupee 1 coin as A, rupee 2 coin as B, and 5 rupee coin as C. And then she has started writing the sample space as AA, BB, CC. So first, my question to you is AA a possibility for this experiment? What do you Ma'am, No, no, ma'am. There's one only coin? one Okay. coin of ma'am, Yes, because there is only one rupee coin. yeah, so that is important. Whenever you read the question, read very carefully. जब उन्होंने बोला a boy has a 1 rupee coin, मतलब एक ही रुपी 1 rupee coin है, एक ही 2 rupee coin है और एक ही 5 rupee coin है. अब देखो जब आप sample space लिख रहे हो, इसका मतलब उसने पहले चांस में 1 rupee coin ड्रॉ किया पॉकेट में से और दूसरे में भी 1 rupee coin कर रहा है, बट उसके पॉकेट में तो सिर्फ एक ही 1 rupee coin था. So 1 cannot be a possibility, 2 cannot be a possibility, and similarly, ma'am, I said five. vertically. Sorry. Ma'am, I didn't said that horizontally. Ma'am, S वो vertically बोला था. Like A, S. Vertically, okay, you were writing like this, A, B, Yes, C, ma'am. and then Yes. and then Ma'am, I was writing A. Ma'am, I will say horizontally only. Sorry. A, B, then ma'am A, C, then B, A, then B, C, then C, A, and C, B. Like correct. So horizontal. if you're writing this, then it will be correct. So as we have discussed, this cannot be a possibility. So by chance, if anybody has written it like that, तो आप लोग ले सकते हो. And अगर हम अब सीधा देखें तो क्या हो सकता है कि बॉय ने पहले ड्रॉ में 1 rupee कॉइन ड्रॉ कर दिया और दूसरा फिर ऑब्वियसली 2 rupee कॉइन आएगा, या पहले 1 आया तो उसके साथ 5 भी आ सकता है, या पहले 2 आया तो उसके साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है. सो बेसिकली हियर व्हाट आई एम राइटिंग फर्स्ट विल डिनोट माय फर्स्ट ड्रॉ और जो दूसरा है वो सेकेंड ड्रॉ डिनोट कर रहा है. सो हियर 1 2 इज नॉट सेम एज 2 1. इट मीन्स यू आर ड्रॉइंग द 1 rupee coin in first draw and 2 rupee coin in the second draw. So these are your possible outcomes. Just like you said in notation form, AB, AC, BA, BC, and CA, CB. So either of the two things you can write. So if you are denoting it by something, you will have to first define it. Let A denote the 1 rupee coin, B 2 rupee coin, and C 5 rupee coin. Right? Is it clear to everyone? yes, ma'am. Yes. Okay. So let's see. इसी का एक और next part देखते हैं. A person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. So you have to write the sample space for this. एक आदमी है जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स नोट डाउन कर रहा है एक हाईवे पर एक साल में. सो यू विल हैव टू राइट दी सैम्पल स्पेस. बताओ क्या हो सकता है. थिंक एंड देन रेज योर हैंड. विल डिस्कस.
You can raise your hand. सारे आउटकम्स लिखने हैं. Okay. Yes, Arushi. Ma'am, I think maybe the number of cars going along that highway will be the sample space. So, ma'am, then out of that we will choose that how many cars have the accidents. बताओ. इसी का लिखना है सैम्पल स्पेस. सो कितने कार्स हैं वो हमें इतना कंसिडरेशन में नहीं लेना, हमें सिर्फ ये लेना है कि कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर एक हाईवे है और आप नोट डाउन कर रहे हो तो एक्सीडेंट्स होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ओनली दैट मच वी हैव टू कंसिडर, क्योंकि सैम्पल स्पेस में हम ओनली पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं. बताओ. तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू थिंक? तो क्या पॉसिबिलिटी इन सेंस लाइक मैम किस किस कॉजेस से हो सकता है एक्सीडेंट? बेटा कॉजेस वगैरह नहीं होता है यहाँ पर, स्ट्रेट क्वेश्चन है. देखो, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स नोट हो रहे हैं along a busy highway during a year. So you have to write the sample space for this. तो obviously हम किसका sample space लिख रहे हैं? हम number of accidents का sample space लिख रहे हैं. यस मैम. तो मैम हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैम पहला जो एक्सीडेंट हुआ तो मैम उसका S1 S2 ऐसे करके. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, पहला जो हुआ फिर दूसरा जो हुआ, वो तो आप नोटेशंस आप मुझे बता रहे हो. इधर हर एक चीज इंपॉर्टेंट है. देखो, जब बोल रहे हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर मतलब कितने हो रहे हैं, तो अब आपको लिखना है पॉसिबिलिटीज कि कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ड्यूरिंग दैट ईयर. सो नाउ थिंक, कितने हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज लिखनी है. हमें क्या पता कि कितने हो सकते हैं, है ना. हमें ये थोड़ी पता है, हमने उधर खुद ट्रैक नहीं किया है, तो हमें नहीं पता कि 2 हुए हैं या 5 हुए हैं. तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज लिखकर बतानी है, क्योंकि वही सैम्पल स्पेस होगा. उन्हीं में से कोई केस हमारा, मगर कुछ उसके आगे पूछा जाए तो आंसर हो सकता है. सो बेसिकली सैम्पल स्पेस क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं रह जाना चाहिए कि वहां पर वो एक्सपेरिमेंट, वो एक्सीडेंट हुआ हो. सो यू विल हैव टू टेल मी नंबर बताना है उस एक्सीडेंट का. यस मैत्री. Yes, ma'am. Your hand is raised. You want to answer? Ma'am, we'll write like, ma'am, there are like infinity like accidents, ma'am. We don't know, so ma'am, it will be like set 0, 1, 2, and then ma'am. यस, गुड. देखो, जब हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ ही ना हो पूरे साल में, ये एक पॉसिबिलिटी है. सो मतलब 0 एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है 1 हुआ हो सकता है 2 हुए हैं, हो सकता है 3 हुए हैं. एंड सिंस वी डोंट नो, वी कैन राइट डॉट डॉट डॉट, कितने भी हो सकते हैं उसके आगे. सो दिस सेट इज going to be an infinite set, as we do not know the exact number of accidents. So the all possibilities of the accidents can be 0, 1, 2, 3 and so on. Is it clear to everyone? Is there any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. Huh, Jayati, there's a doubt? No, ma'am, there's no doubt. Okay, so my point always in maths is, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ, आंसर सही निकालो या मत निकालो, आंसर के पीछे मत भागो. जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप सोच ही नहीं पाओगे करेक्ट डायरेक्शन में. तो इसीलिए क्वेश्चन को 4-5 बार अच्छे से पढ़ लो, समझने की कोशिश करो कि क्या निकालना है. एक बार वो आ गया ना, आप अपने आप सोल्यूशन निकाल पाओगे हर चीज का. ठीक है. मैथ्स में हम क्या करते हैं, डर के जल्दी से आंसर की तरफ भागते हैं कि आंसर क्या आने वाला है. तो वो जब तक नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा. चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. पहले पढ़ते हैं क्या है. कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप. एक कॉइन को तब तक टॉस करोगे जब तक हेड नहीं आ जाता. डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस. नाउ यू रीड द क्वेश्चन 2-3 टाइम्स आराम से, और फिर उसके बाद you can raise your hand and answer.
एक्सपेरिमेंट क्या है कि कॉइन को टॉस करना है तब तक जब तक हेड नहीं आ जाता, और जैसे ही हेड आएगा आप एक्सपेरिमेंट खत्म कर दोगे. सो डिस्क्राइब दी सैंपल स्पेस, इसके लिए सैंपल स्पेस लिखना है. You can raise your hand. Anybody else wants to try? एक कॉइन को टॉस करोगे तो अगर हेड आ गया तो आप स्टॉप कर दोगे, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. बट जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक हम वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे. तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है. यस कनेका. It can be infinite because we don't know that in first time it will come head or second or third. So first you will have to write 2-3 elements. So whenever you say that it will have infinite elements, so you will have to write 2-3 elements and then dot dot करके आप लिख सकते हो, so that it is clear. ठीक है, बताओ क्या लिखोगे? Ma'am, that it will not come. Ma'am, 0. No, ma'am. Ma'am, this we will write 1. Because they are saying that it has to come. Okay, the first thing here, when you said कि we are going to write 0 or 1, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं उन्होंने बोला कि आप लिख रहे हो नंबर ऑफ हेड्स. नंबर ऑफ हेड्स ही तो डिनोट कर सकता है ना, 0 1 2 3, क्योंकि नंबर ये है 0 1 2 3, जैसे ऊपर वाले केस में देखा था नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. बट यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हो और तब तक टॉस करोगे जब तक हेड नहीं आ जाता. तो अब जब कॉइन टॉस करते हैं या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. सो वन पॉसिबिलिटी इज कि मेरे पास पहले ही टॉस में हेड आ गया. राइट, हो सकता है ऐसा कि मैंने कॉइन टॉस किया और हेड आ गया. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कॉइन टॉस किया और पहली बार में टेल आया. तो अब जब टेल आया है तो आई कैन नॉट स्टॉप इट, बिकॉज बोला हुआ है कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप. तो जब टेल आ गया तो मैं कॉइन को फिर से टॉस करूंगी और देखूंगी कि क्या आता है. तो हो सकता है फिर हेड आ गया, मैंने स्टॉप कर दिया. राइट, या ऐसा हो सकता है मैंने कॉइन को टॉस किया, पहली बार में टेल आया. अब जब मैंने दूसरी बार टॉस किया तब भी टेल आ गया, बट जब तीसरी बार टॉस किया तो हेड आ गया, तो मैंने स्टॉप कर दिया. सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू हैव ऑल द केसेस दैट कि अब जब तक स्टॉप नहीं कर रहे हैं जब तक हेड नहीं आ जाता. आप देख रहे हो अगर पहले में हेड आ गया तो स्टॉप कर दिया था, दूसरे में हेड आ गया स्टॉप कर दिया, तीसरे में आ गया स्टॉप कर दिया. सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. This will be the sample space. That was your answer, Sukhmani and Pragalpa? Yes, ma'am. Right? So this is how you have to write. So always read it very carefully कि क्या पूछा गया है, किसका आप sample space लिख रहे हो, उसी के terms में लिखोगे फिर sample space. इधर number पूछा था तो number के terms में लिखा था, यहाँ पर बोला था coin को toss कर रहे हैं, तो coin को toss करने से या तो head आएगा या tail. अब तब तक करेंगे जब तक head नहीं आ जाता, तो वही लिखेंगे इसके cases में. Right? देखें next question. Yes. Okay, let's do this question. सब अपने आप try करो. A coin is tossed. If it shows head, we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls. अब देखो ये continuation में हुआ है. जब आप एक coin toss कर रहे हो तो अगर head आता है तो आप एक bag में से ball भी draw कर रहे हो उसके साथ, जिसमें 3 blue और 4 white balls हैं. इफ इट शोज टेल, बट अगर कॉइन को टॉस किया और टेल आया है तो हम डाई थ्रो कर रहे हैं उसके साथ. तो आपको बोला गया है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट तब तक खत्म नहीं होता है जब तक आपका पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता. यहाँ पर प्रोसीजर कब एंड होगा, जब आपने कॉइन टॉस किया
और हेड के साथ सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, और जब कॉइन टॉस किया था तो टेल के साथ जब सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, देन योर प्रोसीजर इज गोइंग टू एंड. तो आप पहले अपने आप सोच लो, क्वेश्चन पढ़ो, लिखने की कोशिश करो, एंड देन आई विल शो यू डायग्रामेटिकली एंड ऑल्सो सॉल्व करके भी. ट्राई दिस. Anybody wants to answer? Yes, कोई ट्राई करना चाहता है? चलो स्टेप बाय स्टेप ट्राई कर लेते हैं. Yes, Pragalba. No, I'm not sure, but the sample space can be that when head comes, when the coin is tossed and head comes, then the possibility could be that either a blue ball is picked up or a white ball is picked up. So you can write HB for blue and W for white. Okay. When a tail comes up, then a die is thrown, so we can write T1, T2 till T6. Okay. Okay, let's see it like this. half correct है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, देखते हैं. जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपको पता है या तो हेड आ गया या टेल आ गया, ठीक है. बट आवर एक्सपेरिमेंट डज नॉट एंड हियर. तो इसके आगे हम चले. अब क्या बोला गया है? जब हेड आया, when it shows head, we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls. Now whenever they say that you have 3 blue and 4 white balls या कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स, सो बेसिकली वो सारी बॉल्स अलग अलग हमें ट्रीट करनी पड़ेंगी जब तक वो ये नहीं बोल देते दैट दोज बॉल्स आर आइडेंटिकल. सो जब बोला 3 इस बैग में, लेट्स से इसके आगे एक हमारे पास बैग है जिसमें 3 ब्लू एंड 4 white balls हैं. So I will consider them as B1, B2, B3 and 4 white balls के लिए हम ले लेंगे W1, W2, W3, W4. So that was the only mistake कि जब हम बैग बॉल्स ले रहे हैं तो वो सारे हमें डिफरेंट बॉल्स लेने होंगे because they were not set to be identical, सब सेम नहीं थे. तो अब क्या हुआ? हेड के बाद हम इसमें से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं. तो अब इसके साथ हमारे पॉसिबिलिटीज हैं कि हेड के साथ बॉल 1 आ गई, ब्लू बॉल, हेड के साथ ब्लू बॉल 2 आ गई, हेड के साथ ब्लू बॉल 3 आ गई. ये ऐसा हो सकता है हेड के साथ वाइट बॉल आ गई फर्स्ट, हेड के साथ सेकंड वाइट बॉल आ गई, हेड के साथ थर्ड वाइट बॉल आ गई, या हेड के साथ फोर्थ वाइट बॉल आ गई. सो दैट वॉज टिल जब हमने हेड के साथ सब कुछ देखा. पर ऐसा भी हो सकता था कि कॉइन टॉस किया था और टेल आ जाता. अब जब कॉइन टॉस करोगे और टेल आ गया तो इसके आगे हम क्या कर रहे हैं? हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं. तो डाई थ्रो करने की पॉसिबिलिटीज हमें पता है 1 2 3 4 5 6 ही कुछ आ सकता है. सो आफ्टर दैट अगर हम देखें टेल के साथ सारी पॉसिबिलिटीज, तो टेल के साथ 1 हो सकता है, टेल के साथ 2, 3, 4, 5, 6. सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, मेरे इस एक्सपेरिमेंट में सब कुछ कब एंड हुआ है? जब हेड के साथ सब कुछ पॉसिबिलिटीज हमने बॉल ड्रॉ कर ली और टेल के साथ डाई की पॉसिबिलिटीज देख ली. सो द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट विल बी HB1, HB2,
HB3, HW1, HW2, HW3, HW4, and tail 1, tail 2 till tail 6. So this will be your answer. So everything was correct. Only you will have to consider your blue and white balls as different. ठीक है, तो उनको मार्क कर लेंगे हम, different मार्क कर लेंगे. Is it clear or is there any doubt in this question? Yes, tell me. Is there any doubt? No, ma'am. So मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बताई है, जब भी आपको बोला जाएगा identical, then you can, अगर उन्होंने बोला 4 white balls हैं और बोल दिया कि वो identical है, so then you can consider all of them to be W. But अगर ये नहीं बोला गया identical है, so you take them as W1, W2, W3. तो next question इसी पर based है. Let's see this. इसको try करो. A box contains 1 red and 3 identical white balls. Now they have said that they are identical. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. तो 2 balls निकाल रहे हो आप in succession, मतलब एक के बाद एक, और replace भी नहीं कर रहे हो, without replacement आप निकाल रहे हो. Write the sample space. इसका sample space लिखना है आपको जब आप 2 balls draw कर रहे हो एक के बाद एक without replacement from this box. So read it carefully. थोड़ा पढ़ो, सोचो, समझो, and then raise your hand. Only 2 elements, red, white, and white. Okay. Is that the answer? All of you are getting this? No, Ma'am, ma'am. there should Okay. be white as well. There should be white as well. Yes, Red, ma'am, white. so should be there. It should be there. Yes, ma'am, Ma'am, white, I'm white. getting 12 White. outcomes. 12 outcomes. बताओ कौन-कौन से? Ma'am, because I have taken the white balls as W1, W2, W3. So, Okay. Now, and the whenever they red say ball. identical, just like I explained you in this question, identical में हम उनको सबको same लिखेंगे. Identical में हम उनको W1, W2, W3 डील नहीं करेंगे. ठीक है? Okay, ma'am. तो आप देखो, मैं आपको एक पिक्चर में बता देती हूँ. लेट्स से ये बॉक्स है, हमारे पास एक रेड बॉल है और बोला है 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स हैं. तो 3 तो हैं जरूर W W W है, बट वी आर नॉट राइटिंग देम एज W1, W2, W3, क्योंकि इनको अलग अलग नेम कर दोगे सो दे विल नॉट बी आइडेंटिकल. अब जो पहला आंसर आरुषि ने बोला था दैट वाज नॉट करेक्ट. क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं. जब आप इस बॉक्स में से 2 बॉल निकालोगे तो ऐसा हो सकता है कि पहला आपने रेड निकाल लिया विच इज करेक्ट और दूसरा वाइट आ गया. ठीक है, रेड वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट. देन ऐसा हो सकता था कि पहला वाइट ड्रॉ कर लिया और दूसरा रेड निकाल लिया, ये भी पॉसिबिलिटी है. बट इसी बैग में से ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाइट निकला है और दूसरा भी वाइट निकल गया, क्योंकि वाइट तो 3 बॉल्स है ना, ऑल्दो दे आर आइडेंटिकल बट हैं तो 3 ना. तो W W कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. और कुछ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? रेड वाइट, वाइट रेड, वाइट वाइट, और तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक ही बॉल्स, हमारे पास जितनी बॉल्स थी हमने सब लिख ली और विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे थे. तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब रेड रेड वाला केस नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार रेड निकल गया तो दूसरी बार रेड आएगा ही नहीं, राइट. बट अगर यही केस विद रिप्लेसमेंट का होता तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस if the same question was for with replacement? Everything is same, just you are doing it for with replacement. So what would have been your answer?
Can anybody tell me? एक बॉक्स के अंदर 1 रेड 3 वाइट आइडेंटिकल वाइट बॉल्स हैं. आप 2 बॉल्स निकाल रहे हो एट रैंडम इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट. देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस? Who will tell me? Ma'am, I think it will be the same. It will be the same. With replacement और without replacement में कोई difference नहीं है. Ma'am, I think there will be an added RR. Yes. With the Very good. one. Yes. So there is a little difference, that is, एक पॉसिबिलिटी है कि पहला रेड आ गया दूसरा वाइट, एक है वाइट आ गया रेड आ गया, एक है वाइट वाइट आ गया. तो यहाँ तक तो सब ठीक है. बट जब विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो विद रिप्लेसमेंट में क्या है कि जब मैंने पहला ड्रॉ किया और लेट्स से वो रेड आ गया, अब मैं दूसरा ड्रॉ तब करूंगी जब मैं उस रेड बॉल को वापस बॉक्स में डाल दूंगी. सो नाउ देयर इज अ चांस दैट नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास रेड बॉल आ जाए. सो दैट इज द डिफरेंस with replacement and without replacement. Is it clear now? ठीक है. विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप वही सेम चीज उसमें डाल रहे हो और फिर नेक्स्ट ड्रॉ करते हो. और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक ड्रॉ हो चुका है, अब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ बॉल्स अब कम हो चुकी है, अब उसी में से हम ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट हमेशा केस बनता है डिपेंडेंट इवेंट्स का, डिपेंडेंट केसेस, क्योंकि एक ड्रॉ अब दूसरे पर डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि जब मैं सेकंड बॉल निकालूंगी तो फर्स्ट पर डिपेंडेंट है, एज द नंबर ऑफ बॉल्स विल बी लेस. वेयरएज अगर विद रिप्लेसमेंट करते हैं दोज आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक ड्रॉ कर भी लिया तो सेकंड ड्रॉ के लिए तो मैं सब कुछ वापस रख कर ड्रॉ कर रही हूँ, तो कोई किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है. नंबर ऑफ बॉल्स आर एग्जैक्टली द सेम विच वर फॉर द फर्स्ट ड्रॉ, राइट. सो दिस वॉज योर सैम्पल स्पेस. तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, क्विकली रिवाइज करते हैं. वी हैव सीन what we have done in class 9th and 10th, that was classical and statistical approach. But to study axiomatic approach in class 11th, we need these terms: random experiment, sample space, and events. So we have understood what is a random experiment. A random experiment is an experiment in which you have one possible आउटकम्स. जो भी एक्सपेरिमेंट दिया है उसकी सारी पॉसिबिलिटीज अगर हम लिख दें सेट फॉर्म में, दैट इज आवर सैम्पल स्पेस. और इसी में ये जो सारे एलिमेंट्स लिखे हैं इनको बोला जाता है सैम्पल पॉइंट. सो आउटकम इज कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट. ये हमने आज बेसिकली इसमें देखा है. नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज एन इवेंट and terms related with the event. We have something called mutually exclusive,